Hello everyone, welcome to Shri Shit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second video, or you can say part of the second chapter which we were discussing, named fractions and decimals. हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है fractions and decimals. So what the points we have discussed till now? At first we have discussed the introduction, that what basically fractions are, right? And next we have discussed about the types of fractions, that there are basically three types of fractions, right? Proper fraction, improper fraction and mixed fraction. At next we have discussed about the conversion of fractions, it means mixed fractions into improper or proper fractions, or reverse means conversion of proper or improper fractions into mixed fractions. And at last we have discussed about addition of fractions. तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. पहले हम देखेंगे कि हम एक होल नंबर को अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे होता है. फर्स्टली वी विल सी बाय होल नंबर्स. आपने बेसिकली मीन्स अपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. मीन्स अगर आपको 6 इंटू 4 मीन्स 6 टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स 6 मीन्स 6 4 ज़ा 24, राइट. सो फ्रैक्शंस में भी इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. से एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 6/4 को 3 से, विच इज अ होल नंबर, राइट. सो अब हमें करना है 6/4 को 3 से मल्टीप्लाई. तो ये कैसे होगा, सी. इससे पहले आपको एक बेसिक सा रूल बता दूं. अगर आपको यहाँ दो होल नंबर्स दिए हैं, दो फ्रैक्शंस दिए हैं, राइट, a/b मल्टीप्लाइड बाय a/b आपको करना है. तो वो कैसे होगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे a से और b को मल्टीप्लाई करेंगे b से. So what I am basically trying to say is, if we multiply two fractions, we have to multiply the numerator with the numerator and the denominator with the denominator, right? So in this case, let's come here. So in this case 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे, राइट. सो 6 3 ज़ा 18 मीन्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया हमने. 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 18 and 4 multiplied by 1 is 4, right. So 6/4 multiplied by 3 is equals to 8/4. So अब हम देखेंगे कि इस तरह से हम लोग किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So now let's see that how can we multiply a fraction with a fraction. So let's see how can we multiply a fraction with a fraction, right? So example लेते हैं. Suppose we have to multiply 2/3 with 6/4. So remember the basic rule, we have to multiply the numerator with the numerator and the denominators with the denominator. So in this way we have to do it. 6 2 is 12 and 4 3 is 12 as well. So the multiplication of
2/3 and 6/4 gives the result 12/12, which can be written as 1. Means इसका simplest form, the 12 ones are 12 and 12 ones also 12. So we can say that 2/3 multiplied by 6/4 is equals to 1. बेसिकली आपको फ्रैक्शंस अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करना चाहिए, वरना कभी कभी इसमें मार्क्स कट भी जाते हैं अगर आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हो एंड उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं करते हो, राइट? एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं कि 5/7 and we have to multiply it with 3/8. So how to multiply this? 5 3s are 15, means numerator with the numerator, 5 3s are 15 and 8 multiplied by 7 equals to 56. But see here, we cannot simplify it because 15 के टेबल में 56 आता है एंड ना 56 के टेबल में 15 आता है, राइट? सो वी कैन इसको ऐसे ही रख देंगे because it cannot be simplified further. So in this way we need to see that which can be simplified and which cannot be simplified, right? एंड आपको क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे दिया रहेगा प्रोडक्ट, ऐसे वर्ड्स आपको दिए रहेंगे, प्रोडक्ट, राइट? सो प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन. अगर आपको बोलना दिया गया है, राइट, सपोज राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2/1 and 3/2. So how can we do this? Means it is multiplication, right? Product means also multiplication. So 2 3s are 6 and 2 1s are 2. So इस तरह से आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है कि क्या वर्ड दिया रहेगा. अगर प्रोडक्ट दिया रहा तो उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है. सिमिलरली अगर आपके यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है, सपोज 6/4 of 3/2, राइट? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है मीन्स 6/4 ऑफ 3/2, तो ये हम कैसे करेंगे? सी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइज, तीन सबका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. मीन्स अगर आपके पास वर्ड प्रोडक्ट भी रहा था भी हमें मल्टीप्लाई करना है एंड अगर बीच में ऑफ दिया गया तब भी हमें मल्टीप्लाई करना है. तो इस तरह से आप वर्ड्स का ध्यान रखना. So 6 3s are 18, right? And 4 2s are 8. So very easy, right? So in this way we used to multiply the fraction with the fraction. मेक श्योर कि अगर आपके पास प्रोडक्ट और ऑफ जैसे वर्ड्स रहे तब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So our next topic is division of fractions. So our next topic is division of fractions. तो बेसिकली हम लोग फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, राइट? सी
डिवीजन करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे x मान लेते हैं एंड उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है n अपॉन d से, सॉरी सिंस वी हैव डूइंग डिवीजन सो वी हैव टू डिवाइड विथ n अपॉन d, राइट। सो अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? n अपॉन d मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स n अपॉन d का उल्टा कर देते हैं, मीन्स d अपॉन n कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन n। सो इस तरह से हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर आपके पास यह फ्रैक्शन भी रहा तो उसके साथ जो डिवाइड होने वाला रहेगा उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। So by a whole number, so we have to divide a whole number with a fraction, right? Let's take an example. 8 divided by 7 upon 3, right? सब ये डिवाइड कैसे होगा? सो आपने वो जो रूल था वो समझ गए होंगे, राइट। सो 8 वी हैव टू डिवाइड इट विथ 7 अपॉन 3, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल मीन्स उसका रिवर्स, मीन्स 3 अपॉन 7। So 8 3s are 24 and it is 7. So if we divide 8 with the 7 upon 3, we get the result as 24 upon 7. So in this way we used to divide a whole number with a fraction. Means basically हम इसको divide ही कर रहे हैं। Now let's see that how like a fraction, if we have two fractional numbers, how can we divide them? By a fraction. So we have 4 upon 9. It is an example, right? 4 upon 9 divided by 2 upon 3, right? So we have to divide 4 upon 9 with the 2 upon 3. So how we will divide this? 4 upon 9 we can write this as 2 upon 3, right? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 4 upon 9 whole divided by 2 upon 3, right? So इसका अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स डिनोमिनेटर का हमें रेसिप्रोकल करना है। So 4 upon 9 multiplied by 3 upon 2. 4 3s are 12 and 9 2s are 18. So if we divide 4 upon 9 with the 2 upon 3, we get the result as 12 upon 18. So मैंने जब मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे दो फ्रैक्शंस को, तब मैंने क्या बोला था एंड में कि हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ज़रूरी है और हमें देखना है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। सी यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, राइट।
सो अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे. सो सी 2 के टेबल में 12 आता है एंड 2 के टेबल में 18 भी आता है. सो 2 6 12, राइट, एंड 2 9 18. So this got simplified, so we get result as 6/9, right? So अब हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिससे 6/9 भी कट हो सकता है. So 3 6 के टेबल में भी आता है एंड 9 के टेबल में भी आता है, राइट? So 3 2 6 and 3 3 9. So the simplest form of 12/9 will be 2/3, right? Or we can say 12/8 as 2/3, which is its simplest or lowest form. So in this way we have to make sure कि हम जो अपना रिजल्ट लाएंगे उसे हमें simplest form में कन्वर्ट करना है. And either it can be converted और नॉट कन्वर्टेड, ये हमें ध्यान रखना है. मीन्स हमें एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जिससे दोनों कट होते हो. जैसे कि यहाँ पहले 2 कॉमन आ रहा था इन दोनों के बीच में, मीन्स 2 के साथ 12 भी मल्टीप्लाई हो सकता है एंड 18 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट? सो 2 6 12 एंड 2 9 18, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव सेड दैट दोनों के टेबल मीन्स 6 एंड 9 के टेबल में 3 कॉमन आता है, मीन्स 3 3 9 एंड 3 2 6. तो इट सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आ गया 2/3. ये 2/3 में यहाँ आके रुक गया क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दिस वे वी यूज्ड टू डिवाइड द फ्रैक्शंस विद द फ्रैक्शंस. So, इस तरह हमारा फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शन वाला पॉइंट हो चुका है कंप्लीट. फ्रैक्शंस में हमने अब तक ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिया. नाउ लेट्स सी द डेसिमल्स. बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट? फ्रैक्शंस एक है एंड डेसिमल्स एक है. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रैक्शंस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल्स. सब डेसिमल्स बेसिकली होता क्या है? सपोज आपने कई बार ऐसे नंबर्स देखे होंगे से 6.5 या 6.7 या 2.7 या 6.8 या 9.1 या ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे, राइट? सो क्या हम इन्हें डेसिमल्स बोल सकते हैं? यस, वी कैन से दिस एज डेसिमल्स बिकॉज इट कंटेन्स पॉइंट विद इन इट. सो आपको किसी भी नंबर के अगर बीच में या कहीं पर भी अगर पॉइंट दिख जाए तो उसे हम कहते हैं डेसिमल्स, राइट? सिमिलरली अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है 2 3 4 7.69, राइट, तो ये भी एक डेसिमल ही है क्योंकि हमारे पास बीच में यहाँ पॉइंट मिल गया है. सो पॉइंट डिनोट्स द डेसिमल इन एनी नंबर. सो हम देखेंगे कि अब हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं. कंपेयर. सो हम डेसिमल्स को अब बेसिकली कंपेयर कैसे करते हैं, राइट? सो सी सपोज वी हैव हियर 3.2 and 1.7. We have 3.2 and 1.7 here, right? So अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, right? तो कैसे पता चलेगा? See, first we will see that what is the first digit of this number. Means पॉइंट से पहले जो डिजिट है हम उससे पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसे कंपेयर करेंगे.
सी पॉइंट से पहले यहाँ 3 है एंड यहाँ भी, लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले 1 है, तो 3 बड़ा है कि 1? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, सो 3.2 विल बी ग्रेटर देन 1.7, right? We have to basically compare the digit with the digits. Similarly, अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि 4.2 एंड और 4.9, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सो यहाँ का तो फर्स्ट डिजिट सिमिलर ही है, राइट? सो अब हम देखेंगे कि सेकेंड डिजिट क्या है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 के बाद पॉइंट मीन्स 4 के बाद थोड़ा सा, 4 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? सो 4.2 मीन्स 2 steps more than the 4, and here 4.9 is 9 steps more than 4. So 2 steps is greater or 9 steps is greater? Obviously 9 steps were greater than the 2 steps, right? So we can say that 4.2 is smaller than 4.9 or 4.9 is greater than 4.2, right? So in this way हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, मीन्स हमें डेसिमल्स को हमें कंपेयर करना है। हमें अगर पहले देखना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट डिजिट जो है क्या वो कंपेरेबल है, मीन्स जैसे कि हमने पहले वाले में देखा कि 3 और 1, 3 बड़ा है तो वो 3.2 विल बी ग्रेटर देन 1.7, राइट? बट लाइक दिस केस मीन्स 4.2 एंड 4.7 जिसमें फर्स्ट डिजिट सेम है, इस तरह इससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 4.2 is smaller means second number will be smaller, right? And here this means second digit will be greater, so in this way 4.9 will be greater. अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल। सपोज आपको बोला जाए 40.5 और 0.05 के बीच में कंपैरिजन अब अगर हमें ऐसा बोला जाए कि 0.5 एंड 0.05 के बीच में हमें कंपेयर करना है, राइट? सो सी फर्स्ट डिजिट सेम here means 0 it is, and at next digit we can see that it is 5, but in the next digit here it is 0. अब इसे अगर हम सिंपली समझे तो से अगर मैं यहाँ 04 लिखूं एंड यहाँ 40 लिखूं, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 04 या 40? मीन्स 04 इज स्मॉलर एंड 40 इज ग्रेटर। सेम केस हमारा है डेसिमल्स में, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब हम लोग इसको 0 भी लिख सकते हैं, राइट? So 50 is greater than 05, right? So we can say that 0.5 is greater than 0.05. So in this way we used to compare the decimals, right? Now we will see that how we can multiply decimals.
तो हम बेसिकली डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेसिमल्स को किसी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाय होल नंबर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। Suppose we have 0.2 as a decimal and we have to multiply with it 6. So what I have written, we have to multiply 0.2 with the 6. हमें इधर 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? सी, आप अभी के लिए सिर्फ डेसिमल्स को भूल जाओ। आपसे सिंपली देखो कि 2 और 6 मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 6 12, राइट। So 0.2 multiplied by 6 is 2 multiplied by 6 is 12। अब हमें इसे डेसिमल में पुट करना। सी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। सो डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। 1.2। सो जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है उतना डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट रहता तो हम लोग 2 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट लगा देते। सो इन दिस वे वी यूज टू मल्टीप्लाई द होल नंबर्स विद द डेसिमल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। So now we will multiply whole number with the 2 digits, 3 digits or 4 digits etc. numbers. Why? 10, 100, 1000, 10,000 etc. 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 मीन्स अगर आप एक समझ जाओ तो आप बाकी में भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। सपोज हमें इधर मल्टीप्लाई करना है 6.4 को 10 से। ओके, हमें आप मल्टीप्लाई करना है 6/4 को 10 से। सी, मैंने क्या बोला था, आप डेसिमल्स को अभी भूल जाओ। 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा आपको भी पता है, 64 और यहाँ 0 है मीन्स 640, राइट। अब देखो यहाँ 1 डिजिट के पहले 0 है मीन्स यहाँ भी 1 डिजिट के पहले ही 0 लगेगा, राइट। तो 0 से पहले हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे। तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 64.0 और वी कैन से दैट इट इज 64। सिमिलरली अगर आपके पास 64/100 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 दिया रहता तो 64 into 100 6400। कितने डिजिट्स के पहले नंबर है, पॉइंट है। एक डिजिट के पहले पॉइंट है, राइट। सो यहाँ भी हम एक डिजिट के पहले ही पॉइंट लगा देंगे, मीन्स इट इज 640। सो इन दिस वे अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया रहेगा इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी डेसिमल नंबर से।
So now we will see that how can we multiply a decimal number with another decimal number. So हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, से 2.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.4 से, तो we have to multiply 2.5 we have with the 0.4. डेसिमल्स को एकदम भूल जाओ, पहले 225 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लेते हैं कि कितना आता है. 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, so 5 4s are 20, 0 carry 2, 4 2s are 8 plus 2 is 10, so 25 plus 4 is 100, right? So अब देखो, अब हमें इसमें डेसिमल्स पुट करना है, सिंस इट इज डेसिमल तो इसका आंसर डेसिमल में ही आना चाहिए, राइट? सो अब देखो, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है एंड सिमिलरली यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है. सो टोटल 2 डिजिट्स के पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, सिंस यहाँ पर एक डिजिट यहाँ है एंड एक डिजिट यहाँ है, राइट? सो हमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा. सो 1 2 इससे पहले हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे. सो वेरी सिंपल टेक्निक, राइट? एक मीन्स अगर यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट रहता तो यहाँ हम लोग एक डिजिट्स के पहले ही पॉइंट लगा देते. सिंस यहाँ पर 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो हमने 2 डिजिट्स के पहले ही पॉइंट लगा दिया है. सो इन दिस वे वी यूज टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विथ डेसिमल नंबर. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, से हमें मल्टीप्लाई करना है 6.4 को 1.2 से, राइट? सो रफली एक मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे 64 और 12 का, राइट? 64 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 128 and here cross 64, 1 4s are 4 and 1 6 are 6, right? So 8, 4 plus 2 is 6 and 6 plus 1 is 7. So 64 multiplied by 12 is 768, right? अब हम इसे पुट कर देंगे यहाँ. डेसिमल्स का प्रोसेस क्या था? एक डिजिट से पहले इधर पॉइंट है एंड यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, तो यहाँ 2 डिजिट्स के पहले ही पॉइंट हम लोग लगा देंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So, जितने डिजिट्स के पहले यहाँ पॉइंट रहेगा उतने डिजिट से पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे. सो इन दिस वे वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद अ डेसिमल नंबर. अब हम बात करते हैं कि हम लोग एक डेसिमल नंबर को एक डिवाइड कैसे करते हैं. Division of decimals. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एक
होल नंबर को एक डेसिमल से। सी एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, आपको आगे चल के ये काम आएगा, राइट। सपोज यहाँ पर जैसे कि यहाँ 0.4 है, तो हम लोग किसी डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट, राइट। सो यहाँ देखो 0.4 मीन्स 4 से मीन्स एक डिजिट पहले यहाँ पर 0 है, राइट। सो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 0 हमें पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा। सो ये पॉइंट हमने हटा दिया एंड एक डिजिट से पहले 0 है मीन पॉइंट है, मतलब हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अगर हम फन वे में देखें तो ये यहाँ जो पॉइंट था ये यहाँ आके 0 हो गया। कितना 0 हुआ, एक नंबर से पहले मीन्स एक 0 यहाँ पर बैठ गया। अगर यहाँ पर 0.41 रहता तो यहाँ हम लोग 2 zeros लगाते, मीन्स 2 डिजिट से पहले, सिंस यहाँ पर नंबर है, सॉरी पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 zeros लग जाते। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वी हैव 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। सो इसका हम पॉइंट हटा दिया एंड डिवाइडेड बाय 10। सो वी हैव टू, सॉरी वी आर डिवाइडिंग है ना, basically we are dividing it, so I've mistakenly put it the multiplication side. So 4/10 divided by 2। अब हमें इसे करना है डिवाइड। सी हम लोग जब फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, मीन्स 4/10 एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाता था, राइट। मीन्स ये जो जिसके साथ डिवाइड करना है उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते थे, राइट। इस इधर भी मीन्स 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है। सो 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो इसे हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ओके, एंड 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो इट्स आंसर कैन बी 1/5 और यू कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 4/20। मीन्स अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो यही आंसर आता। मीन्स 4 1s are 4 एंड 10 2s are 20 which is equals to 1/5, जो इसका सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है। So in this way we used to divide a decimal number with a whole number. Now we will see that how can we divide a decimal number with a 2-digit, 3-digit और 4-digit number, means tens, hundreds, thousands। इस तरह के नंबर से हम लोग डेसिमल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। So by tens, hundreds, thousands and etc.
we have to divide 4.8 with 10, right? So we have to divide 4.8, which is a decimal, with the 10, means 2-digit number. सिंपली तो अब हम इसे 4.8 मीन्स पॉइंट हटा के हम इसे डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं, राइट? सो 4.8 48 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. So it will be 48 divided by 10 multiplied by 1/10, right? So 48 into 1 equals to 48 and 10 times 100, right? अब सी हम इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सी यहाँ पर कितने जीरोज है? 1 2, राइट? सो यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, मीन्स इट विल बी 48 और इससे पहले एक पॉइंट, मतलब वी कैन से दैट इट इज 0.48. इसके पहले कुछ नहीं, मतलब इसको हम 0 देख लेंगे. तो इफ वी डिवाइड 4.8 विद द टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, वी कैन डू इट एज लाइक दिस. मीन्स जितने पॉइंट्स रहेंगे, सॉरी जितने जीरोस रहेंगे उतने डिजिट से पहले पॉइंट बैठ जाएगा. सो इन दिस वे वी यूज टू डिवाइड द डेसिमल्स विथ द टेंस, मीन्स 2 digit और 3 digit numbers. अब हम देखेंगे कि हम लोग डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं. से अगर हमें डिवाइड करना है 0.5 को 0.05, अगर हमें डिवाइड करना है 0.5 को 0.05 से, तो अब ये कैसे होगा? पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. मीन्स 5 से पहले 0, मीन्स 1 डिजिट से पहले 0 है, मतलब यहाँ पर 0 बैठ जाएगा. और यहाँ 2 डिजिट से पहले 0 है, मतलब इट विल बी दैट 2 जीरोस लग जाएंगे 1 के बाद. सो इट विल बी 5/10 डिवाइडेड बाय 5/100, राइट? अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट? सो 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100/5. सो अब ये 5 कैंसिल हो गया एंड 10 का एक 0 और इधर का एक 0 कैंसिल हो गया. सो द आंसर विल बी 10. राइट? सो इन दिस वे वी यूज टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद अ डेसिमल नंबर. एक और एग्जांपल लेते हैं इधर. सी से अगर हमें इधर 0.5 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है 0.25 से, सो ये भी सेम प्रोसेस. एक 0 हटा देंगे इधर, जैसे यहाँ एक डिजिट के बाद 0 बैठ जाएगा, मीन्स 1 के बाद एक 0 बैठ जाएगा. एंड यहाँ 2 डिजिट से मतलब 1 के बाद 2 0 बैठ जाएंगे. सो इट विल बी 5/10
डिवाइडेड बाई 525 बाई 100, राइट। सब हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, सो इक्वल्स टू 5 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 100। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर हमें डिवाइड करना है दो फ्रैक्शंस को या दो डेसिमल्स को, जैसे हमने यहाँ कर रहे हैं, सो जो रेसिप्रोकल वाला प्रोसेस है वो सिर्फ डिवीजन में अप्लाई होगा। हम किसी और ऑपरेशन में, मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन जगहों में इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तभी हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर पाएंगे। सो इट विल बी, इट्स रेसिप्रोकल मीन्स 100 by 25, राइट। सो 10 का एक 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 5s are 25, and 5 1s are 5, 5 2s are 10. So its simplest form will be 2, or we can say that 0.5 divided by 0.25 is equals to 2. So in this way we used to divide decimals with the decimal numbers. अब हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर अप करने जा रहे हैं, which is means is conversion. इस पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ऐसे मेजर, जैसे कि किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर, मीन्स अगर आपको सेंटीमीटर्स में नंबर दिया रहे तो उसे हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर में क्या नंबर्स दिए रहे तो उसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सी, पहले तो आपको टेबल, मीन्स एक बेसिक सा इधर टेबल है, उसे हम लोग याद कर लेंगे, राइट। वो है किंग हैरी died mother didn't cried much. इसमें आपको सारे चीज दिए रहेंगे, मीन्स सारे चीज यहाँ पर कवर हो चुके हैं। मीन्स किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम इस फ्रेज को याद कर लेंगे। अब ये फ्रेज क्या है? K means kilo, H means hectare, T means deca, M, which is in capital letter, we are taking that. So here M is meters, D is deci, C means centi, and M means milli. सो किलो, हेक्टर, डेका, मीटर्स, डेसी, सेंटी, मिली। सो इस तरह से आपको सिर्फ फ्रेज याद रखना पड़ेगा एंड बाकी के आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे, राइट।
सो अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? सी, सपोज आपको अगर पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, से 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। अगर आप सबको याद रहेगा तो आप तो बोल ही दोगे कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे यहां देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। सी, 1 मीटर्स मीन्स हम मीटर के यहां 1 रखेंगे, एंड उसके बाद नीचे जाते रहेंगे, मीन्स डेसी सेंटी, मीन्स हेयर विल बी 0 1 एंड बीच में भी हमारा एक 0 जाएगा। सो 1 0 0 मीन्स 100। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आपको 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर दिया रहता तो पीछे जाते मीन्स 1 मीटर, राइट। और अगर आपको दिया रहता कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर्स, वन किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स, राइट। तो अब हम इसे कैसे देखेंगे? जितना किलोमीटर्स निकालना है उससे पहले 1 बैठा देंगे, मीन्स इतना निकालना है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हेक्टर टेका मीटर्स, मीन्स 1000। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 meters, hence proved. So in this way we used to convert the measurements into another measurements, means मीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं ऐसे, एंड किलोमीटर में दिया रहता तो उसे हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको बेसिक से सम्स दिए रहेंगे, उसे हमें सॉल्व करना रहेगा। किस तरह के सम्स दिए रहेंगे इधर? आई एम नॉट रबिंग दिस बिकॉज ये हमारा काम आएगा। से अगर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, sorry, if we are given 5 meter into how many centimeters, इस 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। सो पहले हम इसे लिख लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeters. So 5 meters is equals to 5 multiplied by 100. Since यहाँ मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सेंटीमीटर छोटा बड़ा है एंड सेंटीमीटर छोटा है तो इसीलिए हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर्स। सो इस तरह हम लोग मीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ऐसा दिया रहा से 5 सेंटीमीटर into meters,
तो सेम प्रोसेस, राइट? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमेशा जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसे लिख लिया करना, क्योंकि तब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितना मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर या कैसे निकालना पड़ेगा। तो वो हमें उसका कंफ्यूजन हटाने के लिए ऐसे लिख लेना अच्छा रहता है। So we have to convert 5 centimeter equals to meters. So 1 meter equals to 100 centimeter. So 1 centimeter is equals to 1 upon 10. सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, राइट? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 मीटर्स। अगर यह मीन्स मीटर्स था तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे। So 5 centimeter is equals to 1 by 100 into 5. Means we can say that it is 5 upon 100. So 5 by 100 को हम लोग डेसिमल्स में कैसे लिख देंगे? मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म अगर करना रहेगा तो 5, सिंस यहाँ 2 डिजिट से पहले 0 है तो यहाँ 2 डिजिट से लग जाएंगे 1 2 5 और 0, मीन्स यहाँ 2 डिजिट 2 जीरोस है तो यहाँ 2 डिजिट से पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, मीन्स पॉइंट यहाँ, एंड इट विल बी 0 1 here put it. So 5 centimeter is equals to 0.05 meters, right? So in this way we used to convert meters into centimeters, kilometers into meters, and etc etc. Always ये जो phrase है इसे याद रखना, King Harry died, mother didn't cried much. So इस तरह से हमारा डेसिमल्स वाला जो पॉइंट हो जाता है complete, and along with that our chapter is completed. So it's time for few homeworks. Okay, आपको मैं कुछ होमवर्क्स देने जा रहा हूँ, आप ये होमवर्क्स करके रखना। अगर आपसे नहीं होते हैं, मीन्स इफ यू गेट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और रिलेटेड टू दिस सम्स और प्रीवियस सम्स, मीन्स जो मैंने पहले दिए थे, उनसे अगर आपको कोई डाउट रहता है आप उसकी डिमांड कीजिए, एंड आपके डिमांड में उसका सॉल्यूशन यहाँ करवाया जाएगा। ओके, सो आई जस्ट गिव यू एक्सरसाइज 2.2 in your books. Page number 36 and 37 दोनों पेजेस में ये एक्सरसाइज डिवाइडेड है। सो इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 5 and 7 आप देखना, जब आप क्वेश्चन देखोगे कि 1 में कुछ पार्ट्स है, राइट? तो आपको पूरे पार्ट्स करने पड़ेंगे, एंड 5 and 7 उनके भी पार्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्सरसाइज 2.3। ओके, इसके हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आपको मैं कुछ स्टफ
मीन्स आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपके जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के जितने भी आज पॉइंट्स हमने कवर अप किए हैं एंड पिछले वीडियोस में जितने भी हमने पॉइंट्स कवर अप किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ओके, पेज 42. From page 36 and 37 we get 1, 5 and 7 as homework, and exercise 2.3 of page 42 we get 1 and 2 as your homework. Now just one more exercise 2.4. Actually the page I have forgot, so you may find this in your books, right? Question number 1 and question number 3. That's it. So page number 36 and 37, exercise 2.2, 157, exercise 2.3 of page 42, 1 and 2, and exercise 2.4, question number 1 and 3. So you may try to do this on your home. If you got any doubt, or if you don't able, means if अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो यू मे डिमांड फॉर इट। आपके डिमांड में उसका कोई भी जो डाउट रहेगा या अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो वो हम यहाँ पर करवाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। So until then, take care and stay safe.